Please welcome Mr. Sudeep Bajpayee, sir. संडे यहाँ कैसे? एवरी टाइम आई एम इनवाइटेड टू एन इंजीनियरिंग कॉलेज थोड़ा मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं, मैं नर्वस हो जाता हूँ। उसकी वजह यह है कि आई एम नॉट एन इंजीनियर माई सेल्फ, और मेरा बड़ा भाई इंजीनियर है, और आपके बगल में एक इंस्टीट्यूट है आईटी कानपुर शायद, वहां से तो तो the problem is that he got through ID Kanpur when I was in class 4th. We have a gap of nearly 9 years. So उसके बाद से मैंने जो भी कुछ किया लाइफ में, I just could not match up. It was कि पापा इकोनॉमिक्स में 95 आया है, मैथ में कितना आया है, पापा डीएवी में सेंचुरी मारी है, मैथ में कितना आया है। So finally in class 9th I decided कि मैथ में कुछ नहीं आएगा। And after class 9 life became very simple for me. I told my parents कि अब तुम कुछ कर लो, घर से निकाल दो, बेदखल कर दो, वैसे भी तुम्हारे पास ज्यादा जमीन है नहीं, मैं मैथ तो नहीं पढ़ूंगा। So science and math, they took a back seat, but then fortunately I had some other skill sets. I was very good at reading stuff. I slowly developed the skill of speaking, and मैं भी सर को बोल रहा था कि this is something that can be developed because whenever I face a crowd, I am nervous like hell. और मैंने सर से कहा कि सर वो पोडियम सामने रख देते क्योंकि पैर कांपते हैं, तो वो पता चल जाता है अदरवाइज। And it happens every single time, even now. So the good thing is that if someone like me, who has a propensity to be nervous, can manage to handle a crowd, I think everybody can. I'm not an engineer, but trust me, I have been to almost all decent engineering colleges in this part of the nation. अभी साउथ वाले नहीं बुला रहे हैं, वो भी बुलाएंगे। थोड़ा तमिल एंड कन्नड़ सीख लूं थोड़ा सा मैं। Coming to what communication skill is about, or 80% of your success in life, trust me, 80% of success will depend on how well you communicate. Because मेरा मानना यह है, आप जिस भी स्ट्रीम के होंगे, मैकेनिकल, सिविल, CS, whatever, the knowledge flattens at a certain point. भाई सिलेबस तो वही है, सब लोग वही पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग केवल एक दिन पहले पढ़ रहे होंगे। इंजीनियर्स नॉर्मली रात को पढ़ते हैं, नाइट आउट मारते हैं, सुबह इम्तहान दे आते हैं। और देखो इतना तो मुझे पता है। सो यू कांट से कि तुमने किया नहीं है, बट मैंने बोला ना, घर पे एक बंदा बैठा है तो बताता है मेरे को कैसे किया। बट व्हेन यू गो आउट इन द वर्ल्ड, व्हेन यू हैव टू एक्चुअली वर्क विद people from different backgrounds, then it is all about man management. How you deal with people, maybe, and chances are you don't like them, but you have to work with them. So that is when your communication skill, it plays a huge role. Now the trouble is, we don't talk much about it. We don't know much about it. We don't know the ways, actually, how to go about it. तरीके सिंपल हैं। पहली चीज, be the good guy. It shows. I keep telling people that the way you park your vehicle amply shows the kind of person you are. अगर आपने अपनी मोटरसाइकिल पार्क की है या कार पार्क की है, कि अगले की निकले ना निकले हमें फर्क नहीं पड़ता। Boss, you are not cracking any interview in your life. If you park your vehicle in the way that, okay, if I'm not here for the next 45 minutes and the guy wants to take his vehicle out, he or she is not facing a problem. Just be the good person, first of all. That will give you the energy. And trust me, the moment you walk inside a hall, the energy you carry, the good and the bad, it is palpable. वो सामने वाले लोग आराम से समझ जाते हैं ये बंदा किस मूड में आया हुआ है. So if you are just a happy person, a happy kid, a good kid, a helpful person, your personality automatically, it oozes that kind of thing. तो पहला चीज, गाड़ी ठीक से पार्क करो बॉस, बी द गुड गाय। ऑलराइट, माना बहुत कंपटीशन है, बट मेरे हिसाब से मेरा कंपटीशन का डेफिनेशन बहुत अलग है, बिकॉज आई हैव नेवर कंपीटेड विद अदर पीपल फॉर सम ऑड रीजन, बट व्हाट आई बिलीव्ड इज दैट एवरी सिंगल डे इट्स अ कंपटीशन विद योरसेल्फ. सो दैट इज द ओनली कंपटीशन. कभी कभार क्या होता है, हम बगल वाले को नहीं बताते हम क्या कर रहे हैं. आई बिलीव हेल्प वन अनदर आउट देयर. The more you start focusing on other people, the better you get.
And the better you get, the more confidence you get. And the more confidence you have, it doesn't make a difference where you are, your legs are shaking or not, you will be able to manage the stuff. मुझे बताया गया कि यहाँ पे मेन जो इशू एक आता है हर साल, वो ग्रुप डिस्कशन का आता है. That you are given a topic and you are asked to prepare for say 3 minutes, 4 minutes, and then they say हाँ भाई बोलो. प्रॉब्लम क्या है बोलने में? घर पे तो बहुत बोलते होगे, यहाँ भी बोलते होगे. Anybody who has been silent for last 30 days or something? Maun Vrat? Nobody? So everybody can talk? I tell you the problem with GD is, the problem with GD is actually not reading enough. How many of you are interested in reading stuff beyond your subject? कितने लोग ऐसे हैं जो सब्जेक्ट के अलावा रोज कुछ ना कुछ नया पढ़ते हैं? All right, you've got some 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A huge minority. Human brain is not inclined towards reading stuff. मजबूरी में पढ़ते हैं हम लोग. ये जो आप पढ़ाई कर रहे हो ना, इतने बड़े इंस्टीट्यूट में आके एक एग्जाम पास किया होगा, बहुत मेहनत से उसका प्रिपरेशन किया होगा. अगर अभी अभी आपके पास एक व्हाट्सएप आ जाए घर से कि बेटा ऐसा है ना, आप 21 साल के हो गए हो, लगभग होने वाले हो, हम आपके अकाउंट में 5 करोड़ ट्रांसफर कर रहे हैं. फिर देखते हैं कम्युनिकेशन स्किल कितना इंपॉर्टेंट है, फिर देखते हैं कि HBD का सिलेबस कितना इंपॉर्टेंट है, प्लेसमेंट सेल कितना इंपॉर्टेंट है. वी आर हेयर बिकॉज वी हैव टू बी हेयर. मोस्ट ऑफ अस डोंट वांट टू बी हेयर. तो पढ़ तो लेते हैं. अब कम्युनिकेशन का या बात करने का जो सलीका है ना, इसका कोई डायरेक्ट हमें बेनिफिट नजर सीधा सीधा नहीं आता है. सिमिलरली रीडिंग का जो बेनिफिट है वो हमें सीधा समझ में नहीं आता है. सपोज यू आर गिवन अ टॉपिक कि यार विमेन एम्पावरमेंट, एक बड़ा पॉपुलर टॉपिक है विमेन एम्पावरमेंट. ऑलराइट. और मैं इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझता हूं क्योंकि मैं अपने घर में माइनॉरिटी में हूं. आई मीन आई एम मैरिड टू अ वुमन. You never know what happens. So let me clarify. I'm married to a woman. I have a daughter. So 2 females and 1 man. So women empowerment मुझसे बेहतर बहुत कम लोग शायद समझेंगे उस चीज को. If you are given the topic, talk on women empowerment. How do you gather ideas? How do you generate ideas? How do you collect points to say? कहां से generate करोगे आप? From your existing knowledge. जो कुछ आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा, वहीं से आइडिया जनरेट होते हैं. Now my humble suggestion and request is that please start reading every single day and please read the stuff that you enjoy reading. दुनिया में इंटरेस्ट है आपका? मतलब संत वंत तो नहीं बनने का, हिमालय निकल लेंगे कुछ दिन बाद की नहीं, दुनिया तेरी दुनिया में जी लगता नहीं. अब ऐसा तो नहीं है. कुछ तो इंटरेस्ट होगा लाइफ में. फिगर आउट. I'll give you the choices. Maybe fashion, maybe travel, maybe food, maybe entertainment, maybe sports. I give you 5 options. ना मैं इकोनॉमिक्स बोल रहा हूं, ना मैं पॉलिटी बोल रहा हूं, ना मैं ज्योग्राफी बोल रहा हूं, ना मैं हिस्ट्री बोल रहा हूं. I am giving you totally different options. I hope इसमें कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट होगा. Please read. Start reading about it. I tell you why. हमने आपको टॉपिक दिया women empowerment के बारे में या taking India to the world के बारे में. Fine. I just read an article about it. Do you know Wimbledon? Perhaps the greatest Grand Slam that is there in the world. All right. उनके towels होते हैं जो players use करते हैं. You'll be glad to know that those towels are manufactured in India, in Gujarat, in Vapi. The company belongs to UK. Christie करके नाम है उनका. An Indian company bought it in 2006 or 7 for maybe 100 CR. And this company, I think it is Welspun or V-Spun, I am not able to recall the exact name. It is headed by a woman, Deepali Goenka. Now, if you know this information, if you have read this, you have got 2 clear-cut points out there to give them. Women empowerment, who is heading it? A woman. Taking India to the world. It's Wimbledon, the greatest tournament in tennis that is there. And who supplies the towels? Somebody from India. Now, suddenly what happens, the people who are listening to you, knowingly or unknowingly, they form an image. उनको ये लगता है यार ये बंदा prepared है. Because this is something that he knows and we don't know. So immediately at that point, you gain a point. आप खट से आगे निकलते हो. And it's all about confidence and getting nervous.
सारा खेल इसी चीज का है। आप नर्वस हुए, आप गए। अगर जो बंदे वहां बैठे हैं उनको ये लगा या दिस गाय इज सुपीरियर, इफ दे स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट इनसाइड ऑफ देमसेल्व्स, you have already won it. The greatest of the athletes, they win the race before the race begins. When Rafael Nadal enters the court, or now तो अब तो retirement के पास आ गया है, but if you see his entrance, the way he entered the court, he had won the match at that particular moment itself. His body language, his aggression, his focus, his stone-like face, वो opponent already हार मान चुका है। वो बस try कर रहा है कि जैसे तैसे अगला 2 घंटा कटे हमारा। So if you set the tone like that, that I know something that you don't know, I can tell you something that you don't know, you have already won the race. But it all starts from collecting information, and that is done only through reading. Ruskin Bond sir कहते हैं कि उनके स्कूल में, you have heard of Ruskin Bond, the greatest storyteller that India has had. He came to Missouri and stayed. In his autobiography, it is Lone Wolf Dancing. उनका autobiography का नाम है Lone Wolf Dancing. उन्होंने साफ लिखा है, in my school library at Nainital, only 2 of us used to visit. इतने बड़े स्कूल में केवल 2 बच्चे जाते थे लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए. Now that argument that we have got phones, we have got Insta, we have got Facebook, we have got Twitter and whatnot, you know that better. तब तो ये कुछ नहीं था. 1920s, 1930s, nothing was there. But still nobody read. So that is why people who read, they stand a wonderful chance of getting ahead of the 99% of the people who do not read. So my suggestion is, please read something every day. और मैं ये भी नहीं कहता आप इंग्लिश पढ़ो, आप मीर पढ़ो, आप दिनकर पढ़ो, आप गालिब पढ़ो, लेकिन भगवान के लिए कुछ पढ़ो। अरे कहीं जाके तो कुछ फेंक के आओगे ना। All right. So just sit for 20 minutes, 25 minutes, read something, whatever you want to. And it is impressive. Actually, it is impressive. I can talk to you in Awadhi. I can talk to you in the language that we at Lucknow we speak. Of course, अंग्रेजी टूटी फूटी आती है, वही बोल सकता हूँ. And it makes a difference. It surely makes a difference. Suddenly, if I start telling you, घायल निशाचर का देखे गए साथी आग बोले बड़े वीर हो, आखिर लो डटे रहो. बोला सब ठीक मूल हमें अकेल बली ऐसे अभिमान मन भूले भटके रहो. वैसे हुआ लाखन है जिनते मिले न पार, मूले घुलिया बताई थे सुने रहो. लाल लाल द्या विकराल काल के समान, खैर जो चाहो तो हनुमान ते बचे रहो. The language, it's beautiful. This is Awadhi. Learn as many languages as possible. Try to speak as many languages as possible. The impact it leaves, that is not just the entertainment part. It creates an impression in the mind of the listener. यार ये बंदा कुछ तो स्पेशल है, क्योंकि ऐसे बंदे कम आते हैं. कुछ स्पेशल नहीं है, वो बंदा बस पढ़ता है और कुछ नहीं करता है. It is not the work of any genius. मेरा IQ बहुत लो है. When I started teaching, I talked to my guru and teacher. मैंने कहा sir, what are the points to be kind of to be kept in mind जब आप क्लास में आते हो? The first thing he said, जो तेरे सामने बैठे होंगे, chances are उनका IQ तुझसे हाई होगा. Respect that. मैंने कहा सर आपने बोल दिया और कोई नहीं बोलना चाहिए. I respect that. And hence, what do I do? Because I need to compete. If I am standing here in front of you, people who are studying in one of the finest institutes in this part of the world, I need to know something that you do not know. What do I do? I cannot beat you in civil or mechanical or CS or even metallurgy, but I can definitely beat you in literature. So that is my game. This is your game. And finally, you all have to come to literature. आगे जाके सिर्फ बातें होती हैं. कितने लोगों को प्यार हुआ आप में से? प्यार ये कह रही हाँ ऐसे ये क्या बकवास है. अरे ever anybody ever fallen in love? कोई बता नहीं रहा है, लेकिन मैं समझ सकता हूं. All right. अगर नहीं हुआ है तो आपका कम्युनिकेशन बहुत पुअर है. अब बोलना शुरू है कम्युनिकेशन. बिकॉज वहां पे ना एक ही चीज है, कम्युनिकेट करना होता है. एंड आप में से कुछ लोग होंगे जो किसी के बिहाफ पे कम्युनिकेट करके आए होंगे. आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज. आई हैव कम्युनिकेटेड ऑन अदर पर्सन्स बिहाफ.
वो दोस्त गया, यार भाई तू जाके बोल देना मेरे लिए ये वो, मैं जाके बोल रहा हूं, बंदा पीछे है ही नहीं वहां पे, इज एब्सेंट, एंड व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू देन? आई हैव रिटन लेटर्स फॉर अदर पीपल। और उसमें दिक्कत क्या होती है ना, व्हेन द गर्ल कम्स टू नो कि चिट्ठी इसने लिखी है, तो आपका तो पत्ता वैसे कट हो गया। लिटरेचर, राइट, लिटरेचर डज वंडर्स, यू विल ऑल हैव टू कम टू दैट। और आप देखो जितने भी ग्रेट आपके इंजीनियर्स होंगे ना, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, अगर आप एप्पल का नाम लेते हो ना, देयर वर टू पीपल, स्टीव वोजनियाक एंड स्टीव जॉब्स। वी नो मोर अबाउट जॉब्स, बट द फैक्ट इज मैकिन्टॉश वाज डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय वोजनियाक। क्या फर्क था? स्टीव जॉब्स बोलता अच्छा था, he was not, he could not even code, for God's sake। ये हमारे बिल गेट्स कहते हैं यार कि उससे क्या कॉम्पिटिशन करना, वो बंदा तो इंजीनियर है ही नहीं, he can't even really sit down and code, वो तो कैलीग्राफी करके आया है। बट अल्टीमेटली आप देखो वोजनियाक को हम लोग नहीं जानते इतना जितना जॉब्स में। वोजनियाक came to India and without having an understanding of the culture, of the people, of the students, he simply stated a raw fact. The raw fact was that Indians are not creative. आपका गूगल कहां है, आपका माइक्रोसॉफ्ट कहां है, आपका आईबीएम कहां है? You have not been able to create anything. Now Steve Jobs would never say anything like that, even if he believed. That is the difference between Wozniak and Jobs. Ability to communicate and take the party on their side. सारा खेल यही है। How you convince the other? People said कि कंप्यूटर्स कौन खरीदेंगे? आप जा रहे हो घर घर जाके कंप्यूटर खरीदो, बोलने उनको there is no market. Jobs said I will tell them you need it and then I'll sell it. Normally क्या है ना, किसी चीज का मार्केट होता है तो आप बस प्रोडक्ट लेके जाते हो कि आपको ये चाहिए, हमने बनाया है। यहां जनता को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, they did not want it. So this guy goes and tells them, look boss, you want it, trust me, you want it and I'm here to sell it. So please start, first homework is you go to your hostels and start reading something. हिंदी पढ़ो, फारसी पढ़ो, उर्दू पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो, लेकिन कुछ पढ़ो। Second thing, this is something technical that I want to tell you. जब आप GD का preparation करते हो, there is something called, can I write on this? Whenever you are in a group discussion or you are asked to write an essay or an article on something, just keep 2-3 things in mind. एक चीज होता है जिसको हम कहते हैं PESTLE, PESTLE. This is the formula. You are asked to write 1000 words, okay? P stands for politics, E stands for economics. Oh, cool. P is for politics, E was for economics, S was for social, T was for your forte, that is technology, L was for legal, and E was for environment. A hot topic because of what we have done to the nature as it is. Now it narrows down your content. Otherwise what happens, I give you a topic ABC, I throw a topic ABC. How will you generate ideas or points? You will get lost. But if you focus on just PESTLE, immediately if you say politics and A, B and C, can you generate points? The topic is A, B, C. You are free to write anything, you are free to say anything. Can you generate points from politics regarding A, B and C? अरे कुछ भी नहीं पता है तो भी आप बीजेपी और कांग्रेस तो पता है ना, एबीसी हुआ ना कुछ। Similarly, what happens is if you are given say just 500 or 1000 words to write, and if you start picking even 1 point from these, you will have enough to cover. And sometimes just 2 points from something, they are more than enough to develop an entire article or to develop an entire argument. So this is something that we keep in mind, so that you are not haphazard in your thoughts कि अरे इसके बारे में क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, क्या करना है।
Just stick to these. Or the more newspaper reading you do, the more points you have. Because all your GDs will be from current topics. जो दुनिया जहान में हो रहा होगा. So अगर आप अखबार पढ़े बैठे हो, उसके अलावा कुछ और भी अगर पढ़े बैठे हो, and you just stick to PESEL, you've got this covered. Now the second part. सर चलो कंटेंट तो बहुत है, बट बोलने में हिचक आती है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, इंग्लिश की प्रॉब्लम है, whatever the other issues. Let me tell you, nobody bothers. Frankly, nobody bothers. What you are wearing, आपने कौन सा चश्मा पहना हुआ है, कौन सी ब्रांड का फोन आप लिए बैठे हो, nobody bothers. You go to a function, आप किसी फंक्शन में जाते हो ना सज धज के, सबको लगता है सब हमें ही देख रहे हैं. एक्चुअली कोई किसी को नहीं देख रहा होता है. बॉयज टू सर्टेन एक्सटेंट लड़कियों को देख रहे होते हैं, लड़कियां टू ऑल एक्सटेंट लड़कियों को ही देख रही होती हैं. उसका रीजन है, बॉयज में तो क्या है ना कि उनको लगता है चल यार थोड़ा तो ऐसे. गर्ल्स का प्रॉब्लम है कंपटीशन है, वो ये ड्रेस इसको कैसे मिली, उनका इशू अलग है. सो एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी इज लुकिंग जस्ट एट द गर्ल्स. आप देखो वो भी हम भी सब उन्हीं को देख रहे हैं. द फैक्ट इज I put on a jeans for 15 days and I go to my classes. Not a single student till date, and I've been teaching for past more than a decade or so. Not a single student has come up to me and said, "कि sir आप तो वही पुराना jeans पहन के आते हो." Nobody bothers. The only thing they bother about is कि आपने बोला क्या है, कैसे बोला है, इसका भी फर्क नहीं पड़ता है. Frankly, there is a girl, Harshita Rathod. She just passed out from IIM Kashipur. उसको इंग्लिश नहीं आती, अब आ गई होगी. When she was preparing, उसको बहुत प्रॉब्लम था. She had flunked 2 interviews. आप समझ रहे हो, एक साल कैट दिया नहीं हुआ, दूसरा साल कैट दिया नहीं हुआ, तीसरा साल कैट दिया, फिर से इंटरव्यू में बैठी है. एंड वी वर फाइटिंग इट आउट कि बेटा क्या करना क्या है, करना क्या है. पीपल वर सेइंग इंग्लिश इंप्रूव करो. मैंने कहा यार 15 दिन है, फॉर गॉड से, you just cannot improve English or any other language. I simply told her, beta, जब कुछ ना बने, say what you want to say in Hindi, but please don't come out without having said a word. She said, sir, कर दे. मैंने कहा देख, नहीं बोलेगी तो सिलेक्शन वैसे भी नहीं होना है, बोल के आएगी, you never know, we have a chance. She got through. फर्क नहीं पड़ता है. So अगर आपके अंदर हिच है कि कैसे बोल रहे हैं, उसको दूर कर दीजिए. हम में से किसी को भी बोलना नहीं आता है, सत्य है. No, none of us are naturals at that. We learn with experience and with the content that we consume. So ये हिचक निकाल दो. दूसरा, सर मेरा पर्सनैलिटी इंट्रोवर्टेड है, मैं बोल तो लेता हूं, बोल तो लेती हूं, लेकिन जब अपने यार दोस्त होते हैं तब, बाहर वालों से नहीं. अब जीडी में कोई यार दोस्त नहीं है, जीडी में जो यार दोस्त है वो भी यार दोस्त नहीं है. Trust me, it's competitive, right? एक सीट है यार, एक जॉब है, 12 लोग बैठे हुए हैं, कोई किसी का नहीं रहा. It's high octane competition. तो उसमें क्या है, आप नर्वस होना लाजमी है. एक जैसे somebody like me or my brother also got through IIM Lucknow. मैंने उसे बोला, मैंने कहा दादा तुम यार बोल तो पाते नहीं हो. When people ask you something, you start blabbering. How the hell did you get through IIM Lucknow's GD? Because that is the biggest you have in India. He said what I did was यार कि कंटेंट बहुत था मेरे पास, पढ़ा लिखा बंदा था, ठीक है, तो चीजें तो सारी पता थी. What he did was he simply acted as an amateur boxer. आपने amateur boxing देखी हो ना, जो हेलमेट लगा के लड़ते हैं. एक तो प्रोफेशनल होती है माइक टाइसन वाली, एक जो ओलंपिक्स में होती है. उसमें क्या है ना, पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं, which means you keep defending yourself and once you get a chance you just give one punch. It's not a continuous knockout kind of bout. Knockout में क्या है ना, आपको मार के गिराना है, so you have to be at it like continuously. But in amateur boxing, you gather a point, you fall back, you run around, you don't let the person touch you. Again you get a chance, you again get a point. This is the best strategy for GD for people who are not very confident about speaking for long periods. आपके पास पॉइंट है, look for the moment, give it, sit back. क्योंकि जो वहां पे जो ऑब्जर्वर्स हैं, they are not worried आपने कैसे बोला है, they are more worried about आपने क्या बोला है. So if you have the points, just try to throw that punch in.
And the more points you have, the more confidence you have. I have been to places where I have just not been able to speak a single word because वहां पे मेरा confidence नहीं है, वो मेरा forte नहीं है, मेरा domain नहीं है. And then I have been to places where you just can't keep me shut. आप मेरे से लॉन टेनिस पे बात करके देख लो, मैं आपके 3-4 दिन खा जाऊंगा. बहुत भेजे में कंटेंट है उसको लेके. आई स्टार्टेड वॉचिंग टेनिस व्हेन आई वाज इन क्लास 2. तब इंटरनेट भी नहीं था, लेकिन फ्रेंच ओपन, विंबलडन, इनके सबके टूर्नामेंट्स के जो लाइव टेलीकास्ट आते थे, सेमीफाइनल्स, फाइनल्स, मैंने सारे देखे हुए हैं. एंड इन क्लास 2 आई वुड हैव बीन व्हाट, 7 year old. So if you want to talk to me on tennis, boss, Eastern grip, Western grip, Roger Federer, Bjorn Borg, why he retired at 26, Alcaraz, Boris Becker, oh, I can kill you with data. But you talk to me about, sir, एक बार ना Pythagoras theorem हो जाए. Pythagoras theorem, for God's sake, क्लास 10th में रट के गया था मैं, और आखिरी में ना मेरे को सिर्फ 2 चीज याद रह गया, उसका ट्रायंगल और नीचे हेंस प्रूव. बीच का जो था ना सब भूल गया मैं. So now that is not my forte, right? So I cannot compete in that. But in tennis, maybe I believe I'm the boss, and if I believe I'm the boss, my confidence is high. Have a lot of content. Speaking will not be a problem, trust me. हम बोलते इसलिए नहीं है, बोल इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि थॉट्स हमारे गैदर्ड नहीं है और वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस में फॉलो नहीं हुए अभी. बोलने की प्रॉब्लम नहीं बेटा, बोलो, जैसे भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. When I went to my school, they simply declared nobody will speak in Hindi. And I was going from Lucknow, from a Hindi medium school. मेरे पहले स्कूल का नाम था कांतवाल क्रेन, बहुत अच्छा स्कूल था. The teachers were fabulous. They taught me discipline, coming on time, टिफिन कैसे खाया जाता है, बड़े अच्छी सिखाई. अंग्रेजी नहीं सिखाई क्योंकि हिंदी medium स्कूल था. And suddenly the school in Mussoorie, they told me, आप कल से सिर्फ इंग्लिश बोलोगे. Trust me, for good 7-8 days, the entire class was talking only in signals. क्योंकि पनिशमेंट भी था. तो आपने ना डाइनिंग टेबल पे बैठे हो and you want दाल and you are saying, वो अगला बंदा चावल दे रहा है. ठीक है, because there are seniors who are observing. लेकिन आपको वहां पे अकेले रहना है, 4 months रहना है, कब तक नहीं बोलोगे और कब तक चोरी छिपे हिंदी बोलोगे. There were people in my class, 18 of them coming from Bihar. Hardcore Bihar, Darbhanga, Chhapra, Katihar, Purania. The first fellow who sat beside me, and we used to get an injection on the day 1. वो day 1 quarantine करते थे सबको कि आप जहां कहीं से भी आए हो ना, हम इंजेक्शन लगाएंगे ताकि कोई इन्फेक्शन फैले ना. Now this kid, I mean in class 3, दोनों लोग 8 साल के हैं, बैठे हुए हैं, and he suddenly says, सब बड़ा बड़ा घर का लड़का आता हमको इंजेक्शन लगाता. I'm like, ये क्या है? I could not figure out a single word. वो मैं ना 3-4 महीने बाद से पूछा, मैंने कहा भाई तू बोला क्या था? तो he said, मेरा कहने का मतलब था कि सब बड़े बड़े घर के लड़के आते हैं, उनको इंजेक्शन नहीं लगाते हैं, मैं गरीब घर का हूं. तो मैंने कहा तभी से विक्टिम प्ले कर रहा है तू. वो तब से विक्टिम. इनसे उम्मीद कर रहे थे कि आप अंग्रेजी बोलोगे. And as of now, all these boys and girls, you give them any topic in any part of the world, they will stand and they will deliver. अभी भी वो बगले में पैर था चौहर गए, ये भी बोल लेगा. And अभी भी बोलेगा, look boss, the next time we meet, सब बोल लेगा. We are not losing anything. जो हमारा नेटिव लैंग्वेज है उसको हमने जाने नहीं दिया, हमने बस नई चीजें सीख ली. So I remember after 6-7 days, I had a problem because I had to go to the washroom and you had to seek permission from the teacher. अंग्रेजी आती नहीं, लेकिन मैंने सुना बड़ा था यार. So I went ahead and said, ma'am, may I toilet? She looked at me, go. Fine. I returned, may I come in? Yes. And then she asked, क्या बोला था? What did you say? Ma'am, may I toilet? Then it is not may I toilet, it is ma'am, may I go to toilet? Now within 4 months, starting with this sentence, within 4 months, when I came back from my school, after the first 4 months, I was fluent. I could converse with anybody. Of course, at a certain level, it's not as if you are going to use very, very awesome words, but I was reasonably fluent. It took me just 4 months because I tried and because all those kids tried. And within 4 months, we were okay. Now, no rule scared us.
कि इंग्लिश बोलना है, ये बोलना है, वो बोलना है. It was fine, we did it. The thing is, start. Don't be ashamed of it. It's a language. अगर मैं आपसे देखो, आप माइंडसेट देखो क्या होता है. Suppose we have to learn Japanese or German. We'll be proudly coming and saying, पता है यार, जर्मन पहला वर्ड ये होता है, पहला लेटर ये होता है. बट जब इंग्लिश की बात आती, पता नहीं हम ईगो पे क्यों ले लेते हैं. इट इज नॉट अबाउट इंटेलेक्ट और एनीथिंग. इट्स जस्ट लैंग्वेज, इट्स जस्ट अ सिंपल लैंग्वेज, दैट्स इट. सीखना है सीख लेते हैं. जर्मन सीख लो, जापानीज सीख लो, कोरियन सीख लो, इंग्लिश सीख लो, दैट्स इट. सो डोंट हेजिटेट. कल को मैं और आप उर्दू सीखना शुरू करते हैं, पहला काम क्या करेंगे? अल्फाबेट शुरू करेंगे ना, और प्राउडली सबको बताते घूमेंगे कि पता है उर्दू का अल्फाबेट ये होता है. व्हाई नॉट इंग्लिश? व्हाई नॉट हिंदी? There is no need to be kind of ashamed of learning this language. और जरूरी इसलिए है ना बेटा, कल को trust me, you people are going to go to the world. आप दुनिया जहान में काम कर रहे होगे. The only language is English. You go to South India, you go to Northeast, they don't speak much of Hindi. And we don't know Kannada and Tamil. So what is the common language? It's English. Fine. So those of you who are comfortable with it, keep improving. Those of you who are not comfortable, start right now. Take a target of, say, by the time we graduate from HBTU, language and communication, speaking in public or talking to people will not be a problem, should not be a problem. If you start today, it will not be a problem by the time you have that convocation day. जब वो आप वो गाउन पहन रहे होगे, trust me, language का issue नहीं होगा. Content पे work करिए, रोज पढ़ाई करिए. पढ़ाई करना as in read literature and speak. Go ahead and talk to people. मुझे लोग बहुत पसंद नहीं है, frankly. I don't like meeting with too many people. I don't like going to parties. I don't like people coming to my house. A gentleman turned up and said कि अरे यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा मिल लें. Instinctively मेरे मुंह से निकल गया तो गुजर ही जाता है. अरे मैं आराम से बैठा हूँ यार, हाफ पैंट पहन के अपने घर में, तुम्हारे चक्कर में ना have to dress up and come to the living room. क्यों आया तू? So I don't like people. But if I didn't tell you that, you will never believe that. It is rehearsed. It can be learned. If I can learn it, you can learn it. Stick to pestle and start speaking. GD का मूल मंत्र ही है. You have to take, and one more thing for the boys, that is. क्या होने वाला है ना, आप जब वहां पे जाओगे GD में, तो of course you'll have 12-15 people of both the genders. Sometimes the boys, and this is a fact, sometimes the boys, they just give that undue kind of not exactly respect, but एक ना संकोच होता है कि लड़की बोल रही है तो बोलने देते हैं. All right, we have been brought up like that ना, कि भाई गर्ल, लेडीज फर्स्ट, एक ही नौकरी है और शादी तुम्हारी इससे होनी नहीं है. ठीक है? सो प्लीज, जेंडर बायस नहीं है, रिवर्स जेंडर बायस है, इसको निकाल दीजिए. वी आर ऑल कंपीटिंग. एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू हियर, बिकॉज गर्ल्स, boys are going to come hard at you and life is tough for you. Just coming out of your house is tough. Just understand beta. Boys, हम अपने घर से बाहर निकले, just imagine दो बंदे फालतू में घूर रहे हैं तुमको. Just understand. And it happens every single day. The first step out of the house in the morning is tough for a girl. For a boy, fortunately, it's not. So girls, you have it tough already. Boys will come hard at you. कुछ करो. We are not helping you. हम मदद नहीं करने वाले. जो करना है आपने अपने आप करना है. And I'm slightly biased towards the girls because I have a daughter. So obviously, जैसे मैं बेटा हूं, तो कभी कभी हम बात करते हैं तो बेटा होके क्या कर लिया. I mean, just ask yourself. कल को यूएस चले जाओगे, कनाडा चले जाओगे, पेरेंट्स यहां पे हैं, ऐसा क्या कर लिया. Getting my point? So in this battle, we are all equals. Please do not give an inch, regardless of the gender. ना आप एक कदम पीछे हटते हैं, ना हम एक कदम पीछे हटते हैं. ये बैटल है और जरा मजा लीजिए. जान तो नहीं जा रही ना. ऑलराइट, थोड़ा इसको एंजॉय करिए, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करिए, चैलेंजेस को एंजॉय करना सीखिए. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट व्हाट आई सेड इनिशियली. जब कुछ ये सब हो रहा है, यू आर स्टिल हेल्पिंग द अदर गाय.
अगर उसका कुछ चीज है जो फंसी पड़ी है, नहीं समझ आ रही है, गो आउट बिफोर ही और शी आस्क्स फॉर इट. बट व्हेन यू आर इन द बैटलफील्ड, वहां पे एक भी इंच ना लेना है ना देना है. We played a lot of hockey back in school, and जब टीम बढ़ती है इंटर हाउस की, तो क्लासमेट्स होते हैं जो कोई इस हाउस में होता है, कोई उस हाउस में होता है. सुबह तक सब दोस्त हैं, लेकिन जब शाम 4 बजे हॉकी मैच शुरू होता था, वी कुड किल ईच अदर लिटरली. मेरे घुटने तोड़े गए खुद मेरे बेस्ट फ्रेंड ने, क्योंकि वहां पे हम गोल नहीं खा सकते बॉस. तो तैयारी ठीक है, एक साथ कर लेंगे, बट जब मैदान में उतरेंगे तो ना 1 इंच देंगे ना 1 इंच की उम्मीद करेंगे. प्लीज बी कॉम्पिटिटिव इन दैट रिगार्ड. ठीक है. देयर इज ऑल दिस टॉक अबाउट कि विनिंग डज नॉट मैटर. Oh bloody hell, it matters. Every time you lose, do you enjoy it? यार बड़ा मजा आया यार, ये वाला हार गए. कभी ऐसा फीलिंग आया अंदर से क्या लॉस्ट इट यार, अगले बार फिर से हारेंगे? ऐसा कभी नहीं होता है. विनिंग मैटर्स, एंड विनिंग इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स. हाँ, करना क्या है? यू डोंट हैव टू चीट, यू डोंट हैव टू यूज अनफेयर मीन्स, यू गॉट टू प्रिपेयर. अगर आपको जीत पसंद है तो जीत की तैयारी करनी पड़ती है. फिगर आउट व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डू एंड देन डू इट. बहुत सिंपल प्रोसेस है. लोग बड़ा मोटिवेशन का बात करते हैं, ये कर लो वो कर लो, शेर से लड़ जाओ, हाथी को मार दो, सब बकवास है. देयर इज समथिंग टू बी डन, इट हैज टू बी डन, एज सिंपल एज दैट. एंड इफ एट ऑल यू नीड एनी काइंड ऑफ मोटिवेशन, प्लीज just remember you've got parents back at home who are working full time just to bring you up. Please tell me the date or the month or the week when your mother took leave. जब मम्मी ने छुट्टी ली हो. Anybody? कि माँ उस दिन 2 दिन की छुट्टी पे चली गई थी. She has not gone on a leave for the past 20-25 years. She will never go on a leave. Moms, don't go on a leave. It's up to you to make sure that you retire them. कि मामा अब उतना ही काम करना है जितना मन करे. आम का अचार अगर डालने का मन है तो डालो, नहीं मन है तो 3 लोग होंगे, उनको बोल देना, कुछ कर देंगे, जिम्मेदारी मेरी है. That is the only motivation you need. You got to retire your parents as soon as possible. बहुत काम कर रहे हैं यार ये लोग, बहुत काम कर रहे हैं, और आपसे ना कुछ लेंगे भी नहीं है. I am a father, I know. Tomorrow if my daughter cracks a big exam, gets a big package or whatever, I don't think I'll be asking her कि बेटा देखो बहुत पढ़ा लिखा के बड़ा किया था, 10 लाख तो हमको दे दो. वो देगी भी नहीं, वो भी बात अलग है. ठीक है, बट हम मांगेंगे भी नहीं. Parents don't ask for it. With the first salary that I had, मैंने अपनी मम्मा को कैसरोल दिया था, क्योंकि रोटियां ठंडी हो जाती थी. वर्किंग लेडी, सुबह खाना बना के गई, शाम को आई, ठीक है, तो हम तो खा लिए जो खाना था उनके. तो with the first salary it was around 4,000 rupees I got. The first salary that I had, I gave her that casserole. She took it without any emotions, started using it. That's it. कोई ड्रामा नहीं, कुछ नहीं. They expect, they just don't create that drama जो हम पिक्चरों में देखते हैं. माँ मेरी नौकरी लग गई, हरे मेरे लाल, ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है, वो आपसे इस तरह की उम्मीद करते हैं यार, कुछ करोगे घर में आके उसको हम यूज करेंगे. ऑलराइट, please start working on the retirement of your parents. That is the primary motive. That is the only motivation you need to have. बाकी कोई मोटिवेशन जरूरत नहीं है. और एक्सटर्नल मोटिवेशन का बेटा दिक्कत क्या है ना, you walk out of this gate and you have already lost it. मैं आपको लाख चने के झाड़ पे चढ़ा दूं, जैसे ही आप यहां से निकलोगे, अरे पता नहीं पका दिया यार 3 घंटा, it's all over. It's all over. फाइन. मोटिवेशन जो भी है आपके अंदर से है. कुछ लोगों का कॉम्पिटिटिव होगा, आई कैन नॉट कम सेकेंड इन द क्लास, प्लीज ये मत रखो. yesterday I had a podcast with someone who did his BTech from IIT Kanpur and then he went ahead with his MBA from Cambridge. Top of the tops. कल 2:30 बजे तक हमने पॉडकास्ट किया है और आज हम यहाँ पे 100 किलोमीटर दूर कानपुर में है. क्या मोटिवेशन है? ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं है. आई एम नॉट बीइंग पेड मिलियंस फॉर दिस. इट इज जस्ट दैट आई एंजॉय. इट इज जस्ट दैट एक अपॉर्चुनिटी मिली है, चलो मिल के आते हैं. सो हम 4 बजे सोए हैं और हम सुबह टैक्सी पकड़ के यहां पे खड़े हैं. और शायद आपको लग भी ना रहा हो कि मैं नींद में हूं, बट मैंने अभी जितनी बातें बोली हैं सब नींद में बोली हैं. ऑलराइट, आई एम दैट गुड एट दैट. ऑलराइट,
कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए बेटा, एक काम है करना है, सर ने बोला, संडे आपने कमिट किया, आपका पॉडकास्ट आ गया, आपकी प्रॉब्लम है, आपका कमिटमेंट है, आपको आना है। कभी कभी मन करता है ना बहाना मार दो, सर बीमार हो गए, द इजीएस्ट थिंग, व्हाट कैन दे डू, सर बीमार हो गए, मतलब बोल ही नहीं पा, बात समझ रहे हैं आप? नहीं, आप अगर बीमार भी हैं, चल सकते हैं, तो आप आते हैं। कमिंग टू माई नेक्स्ट पॉइंट, प्लीज बी अ प्रोफेशनल इन योर स्टडीज। आई विल एक्सप्लेन दैट। आई एम अ प्रोफेशनल, आई टर्न अप, आई गेट पेड, बात खत्म, ठीक? यू टर्न अप, यू डोंट गेट पेड, but you will get paid for this. So it is your goddamn job. You get up and you study. ये आपकी नौकरी है बॉस। Are you getting my point? पैसा आज नहीं मिल रहा है, बट इसी बात का पैसा कभी मिलेगा। So better be a professional. होता क्या है, जैसे मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूं, तो वहां हुआ कि गायब हो गए। मैंने कहा कहां चले गए थे? सर घर चले गए थे। 15 दिन पे घर पे क्या कर रहा है भाई तू? तेरी वैसे ही कोई औकात नहीं घर पे। Why did you go there? काम क्या था? काम कुछ नहीं था, घर चले गए थे। अरे प्रायोरिटाइज कर, तेरी नौकरी थी 15 दिन की, तूने यहां पे लीव मार दी। यू हैड टू बी हियर टू स्टडी, तुम घर निकल गए यार, और घर पे भी तुम्हारा कोई काम नहीं है। आप फ्रेंकली सोचो ना, घर पे तुम्हारी क्या वैल्यू है? वेरी ब्रूटल। अरे मेरी कोई वैल्यू नहीं है, जो थोड़े बहुत पैसे भी कमाता है घर के लिए, आप तो भूल ही जाओ। ऑलराइट, the world will go on without us. My father passed away this year on the day of Holi. Early morning, 4:30, the man gets up, uses the washroom, takes his medicines, asks for tea, lies down and goes off. As straightforward as that. बंदा गया। What am I supposed to do? Keep crying about it? यार, the biggest support has gone. अभी भी भूल जाता हूं कभी कभी कि पापा नहीं है। Sometimes it's like कि पापा से पूछ लेंगे। And then you, oh, he's not here anymore. You just can't ask him. He's gone. But the world is going on. दुनिया चल रही है। पापा चले गए, दुनिया चल रही है यार। कोई भी वैल्यूएबल नहीं है। Please focus on yourself. Please improve yourself. Please develop yourself. The world will go on. बिना हमारे। When Tendulkar was moving towards retirement, we thought अब क्रिकेट में क्या ही रखा है। अभी वर्ल्ड कप जीते तो रखा है ना, वर्ल्ड कप हारे थे तो भी रखा हुआ था। The world goes on. We are not important. मैं तो टीचर्स को भी यही बोलता हूं, my colleagues, कि stop taking this credit कि मैंने पढ़ाया वो IIM चला गया, मैंने पढ़ाया वो IAS बन गया। I went to IIM Lucknow's mess, had lunch. One of my students took me there, and out there when I saw the kids around. Now these are the kids जो आप भी आगे जाके वहीं से जाओगे। ये IIM लखनऊ का है, अहमदाबाद का है, FMS का है, XLRI का है, और मैं उनको देख रहा हूं और सडनली आई गो साइलेंट एंड आई थिंक यार इनको मैं क्या ही पढ़ाता। अगर ये मुझसे नहीं भी मिलते तो भी यहीं आ रहे थे। दे आर जस्ट टू गुड, दे आर अनस्टॉपेबल्स, दे डिड नॉट नीड मी। वो किस्मत की बात थी कि आके टकरा गया मेरे से, वो किसी और से टकरा जाते, उससे पढ़ लेते। तो आई हैव स्टॉप डिस्कसिंग दीज थिंग्स कि मैंने पढ़ा है तो होगा। मैं, मुझे लगता है मेरा काम बिल्कुल जीरो वैल्यू का है। अ गुड किड विल गेट थ्रू एनीवे। हाँ, थोड़ा मैं क्या कर सकता हूं, आई जस्ट लेट यू नो दैट यू आर गुड। दैट इज द ओनली थिंग आई कैन डू। And once you realize you are good at it, once you know you can sit for hours and study, once you know you are hardworking, once you know you are disciplined, once you know you are punctual, you will manage the things on your own. You don't need people like me. And for the professors out here, अरे अभी बाहर सर लोगों ने 2-3 प्रोफेसर्स और इंट्रोडक्शन दिया, and I suddenly again got into a certain kind of complex कि इतने पढ़े लिखे लोग, इनसे क्या बात करें? तो आप थोड़ा स्टाइल मारते हो, ऐसे बैठ जाते हो, ऐसे यूं बात करने लगते हो। The thing is, these are wonderful people. If you have a good mentor or teacher anywhere, I'm not just telling about HB to you, anywhere in the world, please do not let go of that person. बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं यार। स्कूल में जिनसे सबसे नफरत हम करते थे, जिन टीचर से, आज हम सबसे ज्यादा उन्हीं को रिस्पेक्ट करते हैं। There is one certain Mr. Bhatt, he used to teach us economics. We hated him like anything. मतलब बस जान से नहीं मारा, प्लान पूरा कर लिया था। But as of today, he is the teacher who gets maximum visitors at his house. कोई भी बंदा देहरादून जाता है, मिस्टर भट्ट से जरूर मिलके आता है, या एटलीस्ट कोशिश करता है।
एंड वी रियलाइज कि यार बंदा ठीक था, ये क्या बोल रहा था, ए जल्दी उठा करो, ए प्रैक्टिस पे आया करो, ए हॉकी खेला करो, ए इकोनॉमिक्स पढ़ा करो, क्या गलत बोल रहा था? सब तो सही बोल रहा था, हम करना नहीं चाह रहे थे, बस यही फर्क था। जो कर ले गए वो आगे निकल गए, जिन्होंने नहीं किया स्ट्रगल करना पड़ा उनको। सो इफ यू फाइंड अ गुड टीचर, आई सजेस्ट प्लीज गेट होल्ड ऑफ, डोंट लेट देम गो। मैम हो या सर हो, जाने मत देना, बहुत फर्क करते हैं यार ये लोग। एंड दे आर ह्यूमंस, दे आर फाइटिंग देयर ओन बैटल्स एज सच। हम सबका दुख दर्द अलग है ना यार, तो एवरी वन ऑफ अस इज फाइटिंग आवर ओन बैटल, बट एक्सट्रैक्ट वट एवर यू कैन फ्रॉम अ पर्सन। जहां से कुछ सीख सकते हैं सीखते चलिए, छोटा भी चीज हो सकता है या जस्ट द वे यू एंटर द इंटरव्यू रूम, इट इज स्मॉल थिंग। अभी हो सकता है आप यहां से एंट्री मारो, यहां पे एक क्या कहते हैं झाड़ू पोछे का बकेट हो, वो गिरा पड़ा हो, इट्स अ सिनेरियो। आप आ रहे हो फाइल लेके, टाई लगा के, आपने एंट्री मारा, मैं कम, ये क्या है, हाउ डू यू रिएक्ट टू इट? एक्चुअली वो डिसाइड कर देता है कि यार तू बंदा कैसा है। तुम बाल्टी फांद के आते हो, तुम बाल्टी सीधी करके रखते हो, तुम बाल्टी सीधी करके वहां रखते हो, स्मॉल थिंग्स। मैंने कहा ना गाड़ी कैसे पार्क करते हो। वन ऑफ द इंटरव्यूज एट इंडिया गुड़गांव, द बॉय एंटर्स, द मैन वाज सिटिंग विद हिज लेग्स ऑन द टेबल। ये रियल इंटरव्यू है। वो बंदा पैर ऐसे क्रॉस करके ना यहां पे पैर रख के बैठा हुआ है। नाउ यू एंटर एंड यू आर लुकिंग एट हिज शूज। अब गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सब भूल गए। फिर उसने पलट के एक पीछे से आवाज आता है, वॉट एवर हिज नेम वॉज, मे बी आई से शिशिर, एंड देन ही रियलाइज कि अच्छा एक बंदा पीछे भी है एंड ही इज स्मोकिंग, और कह रहा हाँ भाई टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अब हम तो भूल गए सब कुछ, हमें नहीं पता हम कौन है। आपके जूते दिख रहे हैं, वो सिगरेट पी रहे हैं, और हमें कहा गया था इंटरव्यू जो है बहुत अच्छा ऐसे सोबर सोबर सा होता है। दे आर पुटिंग a lot of pressure on you just to check will you crumble or will you manage. This cannot be taught. ये internal है। कुछ लोग react करेंगे इस तरह से, कुछ लोग react करेंगे उस तरह से। So if you are a good person, you will react in the positive way. इसकी हम ट्रेनिंग नहीं दे सकते आपको। I have written a lot of statements of purposes for students. Now I have stopped. उसकी वजह यह थी ना कि यार इंटरव्यू तुम्हारा है, क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे, आंसर भी तो तुम्हारा होना चाहिए। मैं आंसर दे रहा हूं, आई स्टॉप डूइंग इट। नाउ आई सिंपली टेल यू बोल क्या बोलना है, एंड देन इन दैट मे बी आई सजेस्ट स्पीक दिस, डोंट स्पीक दैट, बट आई ऑलवेज सजेस्ट प्लीज बी वेरी वेरी सिंसियर एंड ऑनेस्ट इन एन इंटरव्यू। मेरा 100% रिकॉर्ड इंटरव्यूज का, 56 स्टूडेंट्स हैव क्रैक्ड CAT interviews through me. I have a team, wonderful team of people, the senior corporate guys. लेकिन हमने कभी किसी को नहीं बोला ना कि तुम वहां पे झूठ बोलो। एक लड़के का 4 साल का गैप था, 4 year गैप, एंड ही सिंपली सेड कि सर अब इसमें हम क्या बता देंगे, मेरे मामा का फैक्ट्री है, उसका सर्टिफिकेट लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने बोला जाके बोल देना, सर आई मेड अ मिस्टेक, आई एम ट्राइंग टू रिकवर, काइंडली हेल्प। ही गॉट थ्रू। People are willing to help you. आप उनको झूठ मत बोलो ना यार। वो 90 के दशक में किताबों में लिखा होता था, ये मत बोलना, वो मत कहना। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपका एक क्वेश्चन होता है, टेल मी अबाउट योर हॉबी, टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो उसमें एक लड़का मेरे से कह रहा है कि सर कोई बढ़िया वीकनेस बताइए। लिटरली ऐसे कह रहा है, आया बोलता सर कोई बढ़िया वीकनेस बताइए। मैंने कहा इसका मतलब क्या है? तो कह रहा है वो गूगली होता ना कि लगता है लेग कटर है, बॉल अंदर आ रहा है, मतलब लग रहा है कि वीकनेस है बट एक्चुअली मेरा स्ट्रेंथ होना चाहिए। सर आई एम अ परफेक्शनिस्ट, सो समटाइम्स इट कॉजेस प्रॉब्लम विद द टीममेट्स बिकॉज दे कैन कॉम्प्रोमाइज, आई कैन नॉट, सो आई हैव अ प्रॉब्लम। किसको झूठ बोल रहा है? परफेक्शनिस्ट है और ये प्रॉब्लम है, फॉर गॉड से झूठ बोल रहा है। वीकनेस जो होती है सबको पता होती है। इफ यू आर नॉट पंक्चुअल यू नो इट, एम आई राइट? इफ यू हैव अ प्रॉब्लम in public speaking, you know it. If you got a problem in math, you know it. If you cannot run in a straight line, you know it. We all know our weaknesses. Be honest about it. Sir, ये कमजोरी है, मेरे को प्रॉब्लम आती है, मैं ये कर रहा हूं to improve. That is enough.
You don't need to impress them कि सर मैं तो रॉक स्टार हूं बिल्कुल, because none of us are actually rock stars. हम सब वर्क इन प्रोग्रेस हैं और लाइफ लॉन्ग रहेंगे. जस्ट बी द गुड किड. इतना सा आप कर लो, आपको ना ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी नहीं. People like me are irrelevant. We cannot teach you much. We cannot teach you how to walk, how to talk. It just comes from within. If I'm feeling good about the world, my body language changes. If I'm feeling bad about the world, my body language changes. I went to a personality development program for myself. आपकी उम्र का था, तो ऐसे ही ज्ञान बट रहा था, तो मैंने कहा चलो ज्वाइन करते हैं. So I went there and he said, यार तुम हाथ बहुत फेंकते हो, बॉडी मूवमेंट बहुत ज्यादा है, और you need to control. I could not. I just could not control. But I'm doing reasonably okay. मैं अभी भी हाथ फेंक रहा हूं, मैं अभी भी हिल रहा हूं, मैं अभी भी स्टैमर कर रहा हूं, बट काम चल रहा है बॉस. Because internally I feel good about it. As simple as that. Don't let anybody tell you how to walk, how to talk, how to sit. Don't be disrespectful, but don't worry too much about the body language. यार मैं परेशान हूं तो ऐसे ही रहूंगा ना. Why are you telling me तू परेशान है तो ऐसे खड़ा हो जा? अरे for God's sake, my body is not reacting that way. I am nervous, so I'll react accordingly. I'll tell people कि look boss थोड़ा nervous हूँ. I'm अहमदाबाद का इंटरव्यू है, मैं हैंकी, बहुत प्यारा बच्चा, गया ब्लैकआउट कर गया. ब्लैकआउट? टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. हैं? ब्लैकआउट. एंड अहमदाबाद इंटरव्यू किया है बेटा तो 99 पॉइंट समथिंग लेके गया होगा, which means he's a wonderful student. He has been a wonderful student. He blacked out. They simply offered him water. They said, बैठ यार आराम से. It's a big day for you. We understand that. थोड़ी देर में बात करते हैं. थोड़ी देर में बात की. He got through. अगर आप ईमानदार हैं ना, तो दुनिया हेल्प थोड़ा बहुत करती है आपको. But the moment they start kind of, they have a feeling that you are trying to outsmart them, then you don't stand a chance. But before seeking help, prepare. ये last point आपको बोल रहा हूं. People are willing to help only if you are prepared. Suppose I come to you and I say, मुझे यार ना तुम लोग केमिस्ट्री पढ़ा दो. और मैंने लास्ट टाइम केमिस्ट्री पढ़ी थी 1994 में. Will you be very keen to help me? आप हाँ हाँ बोल दोगे, बट आप मेरी शक्ल दोबारा देखना पसंद नहीं करोगे. लेकिन मैं आपके पास आता हूं कि मैम मेरे को ना केमिस्ट्री पढ़ा दो, मुझे ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम आ रहा है, मैंने चैप्टर पढ़ा था परसों, आई जस्ट कुड नॉट गेट इट. दिस मोमेंट में बी यू विल कैच माई हैंड, मेक मी सिट डाउन एंड टीच मी. देयर इज अ डिफरेंस. सेकेंड टाइम अराउंड आई कम प्रिपेयर्ड. मैंने कोशिश किया, मुझसे नहीं हो पा रहा, आई नीड हेल्प. पहले बार में एरोगेंस के साथ आ रहा हूं, पढ़ा दिखाओ. तो हमने कौन सा उधार खाया जो पढ़ा के दिखाएं? हम नहीं पढ़ाते. मदद मांगिए, लेकिन मदद मांगने के पहले प्रिपेयर करिए अपने आप. इतना काम करके आए हैं, इतना करना है जो हमसे नहीं हो रहा है, प्लीज हेल्प. द मोमेंट यू से दैट विद सिंसियरिटी, ट्रस्ट मी बेटा, देयर आर गुड पीपल इन द वर्ल्ड. दुनिया मदद करती है. सो नेवर एवर शाय अवे फ्रॉम आस्किंग फॉर हेल्प. एंड इफ समबडी कम्स टू यू फॉर हेल्प, प्लीज थोड़ा असेस कर लेना सिंसियरिटी कितना है. चैरिटी का जरूरत नहीं है. Help only those who come prepared for it. Do not advise anybody who doesn't need it. जिसको जरूरत नहीं है, सलाह मत दीजिए. Homework for you. You will start reading. सर ने बोला आप सेकेंड ईयर में हो, which means you are going to face your first interview 2 years from now. Am I right? The first GDR interview जो होगा 2 साल. You have got nearly 700 days. 700 दिन है आपके पास. 700 दिन में अगर आप एक आर्टिकल रोज पढ़ते हैं, कैन यू अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ कंटेंट यू विल हैव टू टॉक अबाउट? इंटरव्यू इज अ केक वॉक आफ्टर दैट. बोलने की दिक्कत मुझे नहीं है, आप सब बोल लेते हो. मुझे प्रॉब्लम सिर्फ ये है, क्या बोलेंगे ये पता है कि नहीं. तो 700 दिन है आपके पास. स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. हैव सम शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड वेरी लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ एम्स, कि अगला 1 साल में क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है. एंड आई हैव सीन मैजिक हैपन पर्सनली. मैंने जादू होते देखा है. बहुत टिमिड पर्सनालिटी के बच्चे आते हैं और बिल्कुल खिल के निकलते हैं, सिंपली बिकॉज दे आर कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन इट. आई एम वन ऑफ दोज. आई एम नॉट समबडी हु इज वेरी कंफर्टेबल बीइंग द स्टार इन द हाउस. नो, आई एम नॉट. आई प्रेफर टेकिंग द कॉर्नर सीट. बट आई हैव लर्न कि अगर जरूरत पड़े ना, या तो मैनेज कर लेना,
उतना मैं सीख गया हूं। मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हो, क्योंकि आप इंजीनियर्स हो, मैं नहीं। इंजीनियर्स आर द ओनली पीपल इन द वर्ल्ड हु आर ट्राइंग टू ब्रिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग डाउन। टेक्नोलॉजी लाओ, कॉस्ट ऑफ लिविंग नीचे आएगा, बाकी सब कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ा रहे हैं। तो यू ऑलरेडी हैव दैट सर्टेन आईक्यू, प्लीज डोंट लेट दिस एडवांटेज गो। मैंने कहीं मीम देखा था कि एसएससी का, पीओ का, कैट का, गेट का, यूपीएससी का, सबका एग्जाम दे रहे हो तेरा इंजीनियर, आप सारे इम्तहान दे सकते हो। ऑलराइट, पहले बंदा बीटेक करता है, फिर वो कुछ करता है। ऑलराइट, तो बीटेक तो आपका हो रहा है, इसके बाद आप कुछ करेंगे, उसकी तैयारी अभी से करिए। बी हैप्पी, बी गुड, बी सिंसियर, बी ऑनेस्ट एंड बी वेरी फोर्थराइट एंड बी फियरलेस। वेरी इंपॉर्टेंट, बी एब्सोल्युटली फियरलेस। व्हाट इफ यू फेल? चलो मान लेते हैं, व्हाट इफ यू फेल? आई एम स्टैंडिंग हियर, आई फेल्ड। मैंने लाइफ में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बीट नहीं किया है। इंडिया में रह के सोचो, आप हिंदुस्तान में रह के आपने एक भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बीट नहीं किया है। मेरा घर चल रहा है ना, बढ़िया चल रहा है, लोग बुला बुला के पैसे दे रहे हैं ना। I have failed 100 times, I have succeeded once. Once is enough. Today you will go and listen to Roger Federer's speech. He has just given a few weeks back. He simply says, you know Roger Federer, who is the greatest, one of the greatest tennis players the world has seen. वो बंदा कहता है यार कि I have won only 54% of my points in my life. ये greatest है, जो कह रहा है सक्सेस रेट क्या है? 54%. How many matches did Sachin Tendulkar play? 400 plus. How many centuries? What about the 300 other matches? The guy failed by his standards. तेंदुलकर है बॉस, 400 मैच खेला है, 400 सेंचुरी मारना चाहिए था, अरे केवल 1/4 मारा है यार, a huge failure. And for God's sake, this is Sachin Tendulkar. We will fail more than we will succeed. Accept it. How many times in a year do we get to celebrate? आप देखो ना, सक्सेसेस बहुत कम है, रोना रोज आ रहा है, सक्सेस बहुत कम मिल रहा है, बट एक आधा सक्सेस मिलता है ना। जैसे हर जगह जाके मैं बोलता हूं मेरा भाई आईटी कानपुर का है, मेरा भाई आईटी कानपुर का है, बेटा एक ही दिन तो था ना वो, बस इट वॉज जस्ट वन डे, दैट्स इट। हम उसका गाना पिछले 40 साल से गा रहे हैं, एक ही दिन था। उसके बाद भाई ने क्या किया, लाइक एनी अदर इंजीनियर कुछ कर रहा होगा यार, कौन सा गूगल और आईबीएम बना दिया तुमने। बट हमारे लाइफ में, हमारे फैमिली में एक दिन था, क्या था? दादा आईडी निकल गया, जस्ट वन डे, दैट्स इट। फॉर मी द ग्रेटेस्ट डे हैज बीन व्हेन माय डॉटर वाज बोर्न। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, आखिर शेयर कर रहा हूं आपसे। माय डॉटर वाज बोर्न एंड दे टुक हर आउट ऑफ द थिएटर, दे हैंडेड हर ओवर टू मी। वो करते प्रोसेस होता है, वो 2 सेकंड के लिए दिखाते हैं आपको कि देख लो। तो मैं रोने लगा, तो जो नर्सेस थी ना, उनको लगा ओहो लड़की हो गई, रो रहा है। सो दे केम रनिंग, अरे कोई बात नहीं, अगली बार गणेश जी आएंगे, इस बार लक्ष्मी जी हैं। सो आई एट दैट टाइम ऑफ कोर्स आई डिडंट रजिस्टर इट। ठीक है यार, ओके। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर 1 hour or 2 माय वाइफ वाज सपोज्ड टू बी शिफ्टेड टू द रूम। तो किसी ने ना उनके चेहरे से वो चादर नहीं हटाई। So now I am standing there waiting and I see what? ये गई। मेरे को ये टेंशन नहीं था ये गई, मुझे लगा मैं बिटिया कैसे पालूंगा अकेले। Then somebody ran, अरे नहीं, अरे हटाओ ये करके, and I touched and she was breathing। मैंने कहा अच्छा ठीक है। Alright, 5 days when we got discharged from the hospital, nobody came to me. Normally क्या होता है ना बेटा, आप जानते होगे, जब आप डिस्चार्ज हो रहे होते हैं ना, तो हॉस्पिटल स्टाफ आपको घेर लेता है कि खुशखबरी आई है तो कुछ। मुझे किसी ने नहीं घेरा, उनको लगा वैसे दुखी चल रहा है, बेकार में कूद जाएगा दूसरे माले से, हमारे पे बात आ जाएगी। Nobody, किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। बट दैट वाज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ। आई क्राई इजिली, ये भी सच है, मैं आराम से रो लेता हूं, मेरे को रोना आता है, मैं नहीं सोचता कहां पे है क्या है, ठीक है, आंसू आ गए, बात खत्म हो गया, तो मैं रो लेता हूं। बट दैट वाज द मोमेंट व्हिच हैज बीन द हैप्पीएस्ट। उसके पहले उसके बाद जिंदगी चल रही है, बस चल रही है। सो देयर आर फ्यू मोमेंट्स दैट यू सेवर, दैट यू एंजॉय, दैट यू चेरिश। कम आएंगे, मान लीजिए ये बात,
Don't go looking for happiness every single day. Just go. कुछ कुछ करते रहो यार. जब मोमेंट आना होगा तो आ जाएगा. I was damn serious when I asked, has anybody fallen in love? People who have fallen in love, उनके लिए वो दिन, वो महीना, वो साल, भाई साहब, पहला प्यार भूलता नहीं है. हम नहीं भूल पा रहे. समझ रहे हैं आप? ठीक है, हम 46 साल के हो गए हैं. सर लोग भी बताते नहीं है. ठीक है, भूल कोई नहीं पा रहा है यहाँ पे. नहीं भूलेंगे. It is an emotion which only a lucky few get to experience. आप नहीं भूलोगे, चाहे कुछ कर लो. तो देख लो, सोच समझ के. All right, the homework is read, be good. That's it. Anything else you want to convey to me? Anything else you want to say to me? Ask, or you want to say get lost हो गया यार. We are done. Thank you for being so patient and listening to me. Thank you.